Brajesh Kumar Kambulja. He is from Toronto, Canada. And I would like to invite Dr. Sandeep Kumar, sir, to introduce him. Yes, please, sir. Most welcome. Hello, I'm audible. इस सत्र में 23 अगस्त 2022 के तृतीय सत्र में हमारे स्पीकर डॉक्टर ब्रजेश काम्बोलजा टोरंटो कनाडा से हैं। आपने MSc MPhil सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से पूर्ण की है। इसके बाद आपने 2015 में अपनी PhD डिग्री इसी यूनिवर्सिटी से पूर्ण की है। इसके बाद आपने हाई स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल्स पर 2005 से अध्यापन कार्य किया हुआ है, जिसमें आपने गणित और अन्य विषय पढ़ाए हैं। वर्तमान में आप ब्रमर कॉलेज टोरंटो कनाडा में कंप्यूटर साइंस और गणित को पढ़ा रहे हैं। बिना किसी विलंब के मैं आपको इस सत्र में अपनी टॉक शुरू करने के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। Kindly unmute to yourself, Brajesh, sir. Unmute to yourself, Brajesh, sir. Are you hearing us, Brajesh, sir? Yeah, I can hear you now. Thank you. Thank you, sir. Welcome. Thank you. So you can just start your presentation, sir. Thank you so much. Thank you. So in case some connectivity issue comes, then please have patience, and if it is from my side, I can reconnect and join within 1 to 2 minutes. I have kept 2 connections ready. So first of all, I would like to thank Professor Shivraj Singh ji and the organizing team, and especially the Department of Mathematics, CCS University, Meerut, for organizing this amazing workshop on an important subject, Vedic mathematics, which is the need of the time. And I also thank Dr. Sandeep ji for introducing me, and Dr. Sonia ji. I also thank all the participants and other faculty members of the university and other institutes who have joined this session and this workshop. I hope it will be fruitful for all of us, and we will do more work towards Vedic mathematics. For this session, to make it more interesting, and because it is about the philosophy part, I would like to speak more in Hindi. In case if anyone has any communication issue with Hindi, or they need some English translation, they can definitely send a message in chat for particular slide or particular part of the session. Thank you. So I would like to start my presentation.
So is it visible there? Is it visible? Please. Yes, sir, it is visible. Thank you. This is an international workshop on Vedic mathematics, and it is 7 days long. We see that the schedule. There are very interesting topics. I checked some of the topics when the program was being scheduled, and I selected the philosophy of Vedic mathematics instead of going and presenting some calculations of Vedic mathematics. I thought to present what is philosophy of Vedic mathematics and from where this Vedic mathematics has come, how it has appeared in this world, and what was the reason behind the evaluation of Vedic mathematics. So I would speak more in Hindi now, if it is okay for all of you, right? Because the topic is Vedic Ganit Ka Darshans, the philosophy of Vedic mathematics. So first of all, like we always praise, जैसे हम सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, तो ये जो परंपरा है, ज्ञान की परंपरा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के अंतर्गत ही वैदिक गणित को भी हम गिनेंगे, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो अखंड है, वो कभी टूटती नहीं है। हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता संस्कृति ऐसे ही चली आ रही है, जिसमें ज्ञान विज्ञान कला का अद्भुत समन्वय है, और उन सबके सामंजस्य को साथ में लेकर ही जो दर्शन है, जिसको फिलोसॉफी कहें या दर्शन शास्त्र कहें या फिर विज्ञान कहें या फिर कल्चर कहें या संस्कृति कहें, वो सब एक साथ एक दूसरे में ओतप्रोत हैं। उससे मंगलाचरण करते हैं या उन लोगों को स्मरण, उन शक्तियों को या उन लोगों को स्मरण करते हैं जिससे हमें उनके शुभ आशीर्वाद या शुभेच्छाओं से हम इसमें सफलता पाते हैं। तो सबसे पहले इस ज्ञान परंपरा में जो वैदिक गणित के प्रथम रचयिता भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज थे, उनकी जो परंपरा रही वो शंकराचार्य परंपरा रही। तो उसमें हम उस परंपरा को सबसे पहले प्रणाम करेंगे। वह परंपरा अगर वैदिक वांग्मय की बात देखें तो उसके अनुसार वह परंपरा नारायण से लेकर अभी तक चली आ रही है। सो शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः नारायण समाचार्य वंदे गुरु परंपरा। और खास करके भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज जो वैदिक गणित के जो मुख्य दो महान विभूति हैं, जिनके द्वारा वैदिक गणित हमें प्राप्त हुआ है, एक से तो सब कोई परिचित है, वैदिक गणित नाम आएगा तो भारती कृष्ण जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज का तो आएगा ही आएगा। लेकिन दूसरा नाम आप इस पुस्तक के फोटो में देख सकते हैं, जो नीचे रचयिता इस पुस्तक लेखक के रूप में लिखा है, वो गोवर्धन मठपुरी पीठ के 145वें जगतगुरु शंकराचार्य जी स्वामी निशिलानंद सरस्वती जी महाराज हैं। उन्होंने भी वैदिक गणित के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं और सूत्र लिखे हैं। Sorry to interrupt you in between, sir. Actually, your voice is not clear. Okay. So, is there any solution? Okay, let me try. Thank you. Is it audible now? Sir, yeah, yes, you are audible, but it is not clear. Means, okay. Someone is writing in the chat box, voice is clear. Maybe there is some issue in the university campus. Okay, sir, you can continue. Okay, thank you. I hope the recording captures the audio clearly so that later on also people can see that. तो अगर हम बात करें तो भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज थे, वो गोवर्धन पीठ के 143 शंकराचार्य जी थे। अगर आदि शंकराचार्य से लेकर 2528 वर्ष की परंपरा में देखें तो
तो उन्होंने वैदिक गणित के 16 सूत्र और 13 उपसूत्र आदि जो दिए, जो अभी पॉपुलर वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो अभी तक चर्चा हुई है इस वर्कशॉप में और आगे भी होगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं आज इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा वो सूत्रों को, और उनमें से कुछ सूत्रों को जो 145 में, मतलब जो वर्तमान शंकराचार्य हैं गोवर्धन पीठ के स्वामी श्री निशिलानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने भी बहुत सारे सूत्र, उन्होंने 304 सूत्र दिए हैं, जिसमें से 67 सूत्र शास्त्रों से सीधे लिए गए हैं और बाकी के सूत्रों की रचना उन्होंने स्वयं संस्कृत में की है। तो भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज का भी ऐसा था, उन्होंने जो इतने सूत्र दिए हैं उसमें से कुछ सूत्र सीधे समानार्थी हैं शास्त्रों के वाक्यों के, या फिर शास्त्र का वाक्य है, या फिर कुछ सूत्र उन्होंने स्वयं निर्मित किए हैं, लेकिन उसका अर्थ कहीं ना कहीं गणित के रूप में यूज होता है और कहीं वो दर्शन के रूप में भी प्रकट होता है। तो इसलिए हम भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज वर्तमान जो हैं उनको भी प्रणाम करते हैं कि उन दोनों ने हमें वैदिक गणित दिया है। तो इसमें हम क्या चर्चा करेंगे, मैं आपको क्या क्या विषयों के ऊपर चर्चा आज करूंगा वो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, अभी जो हम गणित पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उसकी व्याख्या क्या है, किसको हम गणित कहते हैं, गणित के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो उसके विषय में थोड़ा सामान्य देखेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद वैदिक डेफिनेशन मैथमेटिक्स की क्या है वो हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वैदिक, जब हम कहते हैं वैदिक डेफिनेशन मैथमेटिक्स की क्या है, सो व्हेनेवर वी से वैदिक, इट मींस इट इज फ्रॉम वैदिक वांग्मय, इट इज फ्रॉम संस्कृत वांग्मय। वो संस्कृत वांग्मय में से, संस्कृत लिटरेचर में है जो वैदिक वांग्मय है, जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण, उपपुराण और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, और पिछले हजारों वर्षों में अलग अलग आचार्यों ने, प्रामाणिक आचार्यों ने किए हुए उसके ऊपर जो अपने ग्रंथ हैं वो भी इसी में आएंगे, वैदिक वांग्मय में, वांग्मय के अंतर्गत ही आएंगे। तो मॉडर्न मैथमेटिक्स की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, या फिर मैथमेटिक्स की मैथमेटिक्स की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है और मैथमेटिक्स की वैदिक डेफिनेशन क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है वो देखेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे, वो आवश्यक है। क्या उनमें कोई डिफरेंस है या फिर समान है या फिर क्या है। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि वैदिक मैथमेटिक्स की व्याख्या क्या है, किसको हम वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं। इसका रीजन जानने का ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इसको वैदिक मैथमेटिक्स क्यों कहते हैं, इसको सिर्फ मैथमेटिक्स क्यों नहीं कहते हैं, या फिर इसको मैथमेटिक्स भी क्यों कहते हैं। तो इन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए जो वैदिक गणित में इंटरेस्टेड लोग हैं, जिनको रुचि है वैदिक गणित जानने में, सीखने में, आगे बढ़ने में, तो उनको वो ये जानना आवश्यक है कि इस गणित को वैदिक गणित क्यों कहा जाता है और किस गणित को वैदिक गणित कहा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज फिलोसॉफी, तो मॉडर्न फिलोसॉफी की डेफिनेशन क्या है, और सिमिलर कंपैरिजन हम करेंगे कि भाई फिलोसॉफी और वैदिक फिलोसॉफी में क्या डिफरेंस है, राइट। और उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम, लेकिन वो जानना आवश्यक इसलिए है क्योंकि जैसे मॉडर्न मैथमेटिक्स और वैदिक मैथमेटिक्स में जो डिफरेंस है या फिर कॉमन है, समान जो पार्ट है, वैसे ही इसमें भी है। तो फिर नया क्या है तो सब पुराना ही, तो नया क्या है, और पुराना है वही नया है, तो फिर हम जो हमारा पुराना है उसको क्यों ना अच्छे से अभ्यास करें। बाद में है द वैदिक फिलोसॉफी, साइंस एंड कल्चर। तो फिलोसॉफी, साइंस और कल्चर, इसके विषय में थोड़ी सामान्य चर्चा करेंगे, और अंत में द फिलोसॉफी ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स के कुछ दृष्टांत देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि वैदिक मैथमेटिक्स की फिलोसॉफी है, ठीक है। एक्चुअली वैदिक फिलोसॉफी से ही वैदिक मैथमेटिक्स आया है, वो वहां प्रस्तुत किया जाएगा और बताया जाएगा। तो ये पूरे जो प्रेजेंटेशन होगा उसकी मैंने आपको आउटलाइन बताई। तो आप बताइए कि आप जितना भी मैथमेटिक्स पढ़े हैं उसके अनुसार, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या जो भी कोर्स किए हैं उसके अनुसार मैथमेटिक्स की व्याख्या आप क्या कहेंगे। If possible, please write down the definition of mathematics according to your information and knowledge and experience. अगर तो आप अभी 1 मिनट के लिए समय निकालकर, गणित क्या है, आप किसको गणित कहते हैं, गणित के अंतर्गत आप क्या क्या लेंगे, सिर्फ एग्जांपल्स कैलकुलेट करना, थियरम्स, और क्या क्या लेंगे।
और जितनी अच्छे से लिख सके उतनी गणित की व्याख्या 2-4 लाइन में आप लिखने का प्रयत्न कीजिए। I have severe throat issue since 1 or 2 days. मेरा गला 2 दिन से खराब है बहुत, इसलिए बीच में मुझे पानी या कुछ दवाई लेनी पड़ेगी, so that I can continue speaking like this for few more minutes. So गणित की आधुनिक जो व्याख्या है आप इंटरनेट से देखेंगे या फिर आपने जितना सोचा है तो वो इसी के अंतर्गत आएगा, जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिया ही है कि इट इज द साइंस ऑफ नंबर्स, जिसमें ऑपरेशंस होंगे, इंटर रिलेशंस होंगे, कॉम्बिनेशंस होंगे, जनरलाइजेशन होगा, एब्स्ट्रैक्शंस होंगे, कुछ क्वांटिटीज के, कुछ फंक्शंस के एब्स्ट्रैक्शंस होंगे, ऐसी क्वांटिटीज को जिसको सीधा कैलकुलेट नहीं कर सकते, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उनकी पैटर्न्स का कुछ जनरलाइजेशन किया जाएगा या डिफाइन किया जाएगा, मेजरमेंट्स होंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे क्वांटिटीज का या फंक्शंस का। तो कुल मिलाकर पूरा गणित इसी में घूमता रहता है, ठीक है। अब यस, किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि मैथमेटिक्स इज गेटवे ऑफ इज द की टू गेटवे ऑफ साइंस, तो सही है, मैथमेटिक्स के बगैर विज्ञान क्या सॉरी और किसी भी शाखाओं का कुछ भी करना संभव नहीं है। तो अब हम देखते हैं व्याख्या इसकी वैदिक फिलोसॉफी के अनुसार, मतलब इसकी व्याख्या क्या है। तो पिछले दिसंबर महीने में मैं जगत गुरु श्री पुरी शंकराचार्य जी, जिन्होंने वैदिक गणित के 304 सूत्र जैसे मैंने बताया, उन्होंने भी रचना की है वर्तमान शंकराचार्य जी ने गोवर्धन मठ के, तो उनके दर्शन के लिए उनको मिला और उनसे कुछ प्रश्न वैदिक गणित के संदर्भ में किए, तो जिसमें से उन्होंने ये बताया वैदिक गणित की गणित की ये व्याख्या बताई कि गणय की गणना और अगणित की लक्षणा का नाम गणित है, उसको गणित कहते हैं। तो ये उन्होंने मुझे इसका उपदेश दिया, ये व्याख्या बताई। बाद में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का भी किसी ने मुझे बताया, तो मैंने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इस प्रकार किया कि द क्वांटिफिकेशन ऑफ कैलकुलेबल ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स, फिगर्स, फंक्शंस और एनीथिंग, राइट, anything that we can see or observe or imagine, and the analysis of attributes of incalculables, जिसकी calculations नहीं संभव है लेकिन उसका analysis संभव है, तो उसको मैथमेटिक्स कहते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंतर्गत इतना आएगा। तो ये व्याख्या वैदिक धर्मशास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में, वैदिक वाङ्मय में ऐसी कुछ व्याख्या भी बताई गई है। अब देखने की देखने की खूबी ये है कि ये व्याख्या न केवल गणित की व्याख्या करती हैं, अपितु ये व्याख्या जिसको वैदिक वाङ्मय में ब्रह्म या परमेश्वर कहते हैं उसकी भी व्याख्या करती है, ठीक है। तो ये व्याख्या ऐसी है हमारी वैदिक डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स के, जो एक तीर से दो निशान ताक सकती हैं। एक तो वो जिसको फिलोसॉफी में इंटरेस्ट हो, वैदिक फिलोसॉफी में इंटरेस्ट हो, उसके लिए भी ये व्याख्या गणित की जगह और गणना की जगह कुछ और देख ले तो दे सकती हैं, जैसे कि फिलोसॉफी के ऑब्जेक्ट्स, और अगर वो गणित की बात करते हैं तो ये देख सकती हैं। अब गणय क्या है, तो आगे हम देखेंगे कि जो भी उत्पन्न होता है, जिसकी भी सृष्टि होती है, जो भी पैदा होता है, वो गणित की लिमिट में आ जाता है, गणित की बाउंड्री में आ जाता है। तो जो भी, जिसका भी जन्म होता है या जो भी उत्पन्न होता है इस प्रकृति में, वो गणित की बाउंड्री में आ जाता है। लेकिन जो कभी उत्पन्न ही नहीं होता तो वो गणित की बाउंड्री में नहीं आता, और जो कभी उत्पन्न ही नहीं होता उसको स्पिरिचुअलिटी में ईश्वर या परमेश्वर या ब्रह्म कहते हैं। तो वो जो अगणित है वो ब्रह्म है, और जो गणित है वो सृष्टि है। तो इस तरीके से सृष्टि और सृष्टि के कर्ता की संबंध भी बताया गया है गणित के द्वारा।
सो ये व्याख्या गणित की है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप इंग्लिश में ये ले लीजिए या हिंदी में ले लीजिए, ये व्याख्या को आप मैथमेटिक्स की डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन या फिर डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स इंटरनेट पे कहीं पर भी ढूंढिए, अगर इस बाउंड्री के बाहर जाए तो वो आश्चर्य होगा। मैंने थोड़ा प्रयत्न किया था, जब मुझे ये बताया गया मैंने ट्रांसलेशन किया, थोड़ा ऐसा आइडिया एज ए मैथमेटिशियन मुझे भी था कि इस सब कुछ इसी में आ जाएगा। फिर भी मैंने प्रयत्न किया कि और कौन कौन सी मॉडर्न डिक्शनरीज में या फिर ऐसी कोई वेब यूनिवर्सिटीज या ऐसे रिसर्चर्स मैथमेटिशियंस ने गणित की व्याख्या की है कि व्हाट दे वांट टू इंक्लूड इन मैथमेटिक्स दिस डेज। तो कोई भी गणित की व्याख्या इस डेफिनेशन के बाहर नहीं जा रही है, वो इसी में इंक्लूडेड है, समाहित है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ वैदिक डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि भाई बात आती है वैदिक गणित की, तो वैदिक गणित किसे कहेंगे? तो वैदिक गणित की डेफिनेशन हम तय करें उससे पहले सॉरी वैदिक गणित की डेफिनेशन हम तय करें उससे पहले तो ये जानना चाहिए कि वैदिक गणित किसको कहेंगे या वैदिक गणित क्या है, वो डिफाइन करने वाला कौन होना चाहिए। तो वही व्यक्ति वैदिक गणित क्या है वो डिफाइन कर सकते हैं जिन्होंने वैदिक गणित दिया हो। पहले तो उनका अधिकार होता है एंड दे नो इट वेरी वेल कि वैदिक गणित उन्होंने किस रूप में, क्या रूप में दिया है। तो इसलिए वैदिक गणित की क्या है उसकी वैदिक डेफिनेशन जो है वो हम आगे देखेंगे, जो नीचे एक्चुअली दी हुई है पर्पल कलर में। और उसका सोर्स क्या है, वैदिक मैथमेटिक्स का सोर्स क्या है, वो कहाँ से आया है। सोर्स ऑफ वेरियस सूत्रास एंड उपसूत्रास मतलब क्या है। तो ये सारे सूत्र वेद में हैं, क्योंकि कई लोग ऐसा आरोप लगाते हैं वैदिक गणित के ऊपर, इस विषय के ऊपर, कि वेद में तो ये सूत्र नहीं है तो फिर इसको वैदिक गणित क्यों कहा जाए। अब वेद मतलब चार वेद तक सीमित नहीं है, बहुत सारी ऐसी गणनाएं हैं, कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। जैसे कि आज सुबह के प्रेजेंटेशन में भी आपने बड़े नंबर्स, बड़े आंकड़े, बड़ी कैलकुलेशंस देखे होंगे। तो सारा का सारा जो वेद मंत्र हैं या वेदों का मंत्र भाग है, चार वेद हैं, ऋग यजु साम अथर्ववेद, उसी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन उन वेदों का ही विस्तार उनके उपवेद कहे जाते हैं, वेदांग कहे जाते हैं, जिसमें ज्योतिष भी आता है। तो ज्योतिष की ही कैलकुलेशंस के उपयोग करके आप कब सोलर एक्लिप्स, कब सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, वो सब जान पाते हैं। और कौन सा ग्रह कितने ग्रह से कितने दूर है, और बाकी सारी कैलकुलेशंस ज्योतिष और एस्ट्रोनॉमी की। तो जो सूर्य सिद्धांत कहा गया है ग्रंथ, वो भी ज्योतिष का ही ग्रंथ कहा गया है। तो सूर्य सिद्धांत तो सीधा वेद का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वह वेदांग ज्योतिष का भाग है। सो कहने का तात्पर्य है कि जब वैदिक कहा जाता है तो इट डज नॉट मीन कि इट इज फ्रॉम 4 वेदा ओनली, इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम समथिंग दैट इज एक्सप्लेनिंग वेदा, राइट। सो उसमें क्या क्या आएगा, वेद, उपनिषद, पुराण, उपपुराण, औपपुराण और बहुत सारे उसके ऊपर के प्रामाणिक ग्रंथ हैं जो आएंगे, इसी के अंतर्गत आएंगे, जिसको हम वैदिक वांग्मय कहते हैं। सारे दर्शन शास्त्र आदि ये सब वैदिक वांग्मय ही है। तो इसलिए वैदिक गणित की जो प्रामाणिक व्याख्या है, अगर कोई आपसे पूछता है कि वैदिक गणित क्या है या उसको वैदिक क्यों कहते हैं, तो हमारा जवाब ये होना चाहिए कि वैदिक गणित अर्थात वैदिक वांग्मय में सन्निहित और उसके आधार पर विरचित गणित। कुछ सूत्र होते हैं वैदिक गणित के जो सीधे शास्त्रों से, वैदिक शास्त्रों से लिए हुए हैं, ऐसा भी दिखाएंगे। और बाकी कुछ सूत्र हैं जो वैदिक फिलोसॉफी या वैदिक विज्ञान के आधार पर वैदिक गणित के कर्ताओं ने रचे हैं, जैसे भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज हो या वर्तमान शंकराचार्य जी महाराज हो, तो वो सूत्रों की रचना उन्होंने स्वयं की है। तो वो सूत्र सीधे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो सूत्र किसको रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट वैदिक फिलोसॉफी एंड वैदिक दर्शन शास्त्र और वैदिक साइंस ओनली। सॉरी। सो ये डेफिनेशन अब किसने दी है,
तो ये डेफिनेशन भी हमारे वैदिक गणित के जो मुख्य दो कर्ता है उन्होंने ही दी है। सो वर्तमानपुरी शंकराचार्य जी ने ही ये डेफिनेशन दी है कि वैदिक गणित को मतलब क्यों वैदिक कहा जाता है, क्योंकि वैदिक वांग्मय में सन्निहित है और उसके आधार पर जो भी गणित बनाया जाता है वैदिक वांग्मय के आधार पर, उसको वैदिक गणित कहा जाएगा। अब आते हैं फिलोसॉफी के ऊपर। तो फिलोसॉफी क्या है? फिलोसॉफी मतलब दर्शन या दर्शन शास्त्र, या किस दृष्टि से हम इस विश्व को देखते हैं वह, ठीक है। तो आधुनिक जो डेफिनेशन है फिलोसॉफी की, उसके लिए हम फिलोसॉफी या मॉडर्न फिलोसॉफी वर्ड यूज कर रहे हैं, और जो वैदिक है उसके लिए वैदिक यूज करेंगे, और उसको फिर हम वैदिक लेंस से भी देखेंगे कि क्या डिफरेंस बचा। तो फिलोसॉफी में ये लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं? मेटाफिजिक्स। अब मेटाफिजिक्स को हम हिंदी शब्दों में समझने का प्रयत्न करें तो तत्व मीमांसा, अध्यात्म विज्ञान, आत्म तत्व विज्ञान, मैं कौन हूँ, ये सब, बाकी लोग कौन है, हमारा संबंध क्या है, तत्व विज्ञान, ठीक है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसके ऊपर विचार करना, सृष्टि के अंदर सत्य वस्तु क्या है, असत्य वस्तु क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसका विचार करना। तो ये आएगा फिलोसॉफी मेटाफिजिक्स में। मेटाफिजिक्स वाला पार्ट जो है फिलोसॉफी का उस ब्रांच में आएगा। फिर आता है एपिस्टेमोलॉजी, तो ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा ये तय करने की बात है कि भाई सत्य क्या है, असत्य क्या है, मतलब ज्ञान किसको कहेंगे, अज्ञान किसको कहेंगे, क्या झूठ है, क्या सत्य है। जैसे कि आज एक बीज पृथ्वी में डाला गया तो वो उसमें से पौधा बन गया, तो बीज अब बचा नहीं है, तो बीज को सत्य कहेंगे या नहीं कहेंगे, या पौधा भी अभी नहीं रहेगा तो वो भी अभी दिख रहा है लेकिन सत्य है कि नहीं है। तो इस तरीके की जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं ट्रूथ के बारे में, व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज अनट्रूथ, तो वो जो ज्ञान मीमांसा है उसको क्या कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी। वो भी एक फिलोसॉफी की एक मेन ब्रांच है। अब आप देखेंगे कि ये तत्व मीमांसा, अध्यात्म विज्ञान, आत्म तत्व विज्ञान, ये सब तो भाई भारतीय दर्शन शास्त्र में पहले से तो विद्यमान है। उसके ऊपर हमारे महर्षियों ने और आचार्यों ने बहुत सारा विचार किया है, बहुत सारे ग्रंथ किए हैं, प्रवचन, और ये सब चलता रहता है और होता है, और हम कई बार हम में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी रहते हैं। एथिक्स, तो एथिक्स मतलब आचार, मानवी का आचार कैसा होना चाहिए, आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, नीति शास्त्र, आचार नीति शास्त्र, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे हमारे पास संस्कृत वाङ्मय में ग्रंथ हैं ही। मॉडर्न फिलोसॉफी ये कहती है, मॉडर्न फिलोसॉफी, आधुनिक जो पाश्चात्य जगत ने जिसको फिलोसॉफी डिफाइन किया है, उसकी ये 3 मेन ब्रांच है, ठीक है। क्या करना सही है, क्या करना गलत है, तो ह्यूमन बिहेवियर में क्या गलत सही है, मॉरलिटी क्या है, वो तय करना है, वो एथिक्स करेगा। चौथा आता है लॉजिक, तर्कशास्त्र, तो वह भी वैदिक वाङ्मय में अद्भुत रूप से है, और नव्य न्याय और आदि जो तर्कशास्त्र वैदिक वाङ्मय का है उसके आधार पर उसने तो कंप्यूटर साइंस के प्रोग्रामिंग पार्ट को भी हेल्प किया है, जिसमें लॉजिक, कंप्यूटर साइंस का जो लॉजिक है उसको भी डेवलप करने के लिए वैदिक वाङ्मय ने काफी सहायता की है, ऐसे प्रमाण हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब कहाँ से लिया गया है, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लिया गया है कि भाई फिलोसॉफी की ये 4 मेन ब्रांच है। अब देखने जाए तो आधुनिक समय में जिसको फिलोसॉफी कहा जाता है वो किन लोगों ने डिफाइन की हैं, किन लोगों ने व्याख्यायित की हैं, तो कुछ नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, उनकी सेंचुरी, उनके कौन सी सेंचुरी में है उसके साथ मैंने ये लगाया है यहाँ पे। तो आधुनिक समय में जिसको फिलोसॉफी कहते हैं, दर्शन कहते हैं, वो प्लेटो, लोके, मार्क्स, एरिस्टोटल, 3rd सेंचुरी से लेकर के, मतलब कुल मिलाकर 2000 साल के अंदर ये लोग हुए हैं, और उसमें से ज्यादातर जो इफेक्टिव हैं वो लोग अभी 17th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक ही हुए हैं। आप इन लोगों के नाम और इनकी फिलोसॉफी देख सकते हैं, इनका क्या सोचना है। इन लोगों ने अलग अलग एक आध ब्रांच के ऊपर ही काम किया हुआ है, सबने सबके ऊपर 4 ब्रांच के ऊपर काम किया हुआ ऐसा बहुत कम है, और वो भी थोड़ा थोड़ा है। और प्लेटो की इफेक्ट उसके बाद एरिस्टोटल के ऊपर पड़ी, एरिस्टोटल की इफेक्ट लोके के ऊपर पड़ी हो, ऐसा भी देखने को मिलता है। लेकिन मूल मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि क्या ये हिस्ट्री फिलोसॉफी की पूरी हिस्ट्री है, नहीं है। लेकिन जब आज पाश्चात्य जगत के प्रभाव में कोई फिलोसॉफी विषय पढ़ता है, या फिर पाश्चात्य जगत में भी लोग पढ़ते हैं, तो वो क्या पढ़ते हैं, ये सब फिलोसॉफी पढ़ते हैं जो अभी स्क्रीन पे ऊपर आपको दिख रही है वो।
इन फिलोसोफर्स और दूसरे कुछ फिलोसोफर्स जो अभी पिछले 1500 साल में 2000 साल में हुए उनके द्वारा। तो ये हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी पूरी नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी जो फिलोसॉफी है उससे कोई गणित नहीं निकला है विशेष करके, ठीक है, जबकि जो वैदिक फिलोसॉफी है उससे वैदिक गणित निकला है। उसका इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंस है वो हम देखेंगे। तो ना तो ये फिलोसॉफी की पूरी हिस्ट्री है, ना ही ये फिलोसॉफी की कंप्लीट डेफिनेशन है। Rajesh sir, if you need, हाँ, आपकी आवाज कट रही है। sir, if you need a break, नहीं, मैं ब्रेक के लिए बीच में म्यूट करके पानी या कुछ ले लूंगा, अदरवाइज इट इज फाइन, थैंक यू। okay, तो 5-10 सेकंड के लिए ब्रेक लूंगा खांसी खाने के लिए, तब मैं खुद म्यूट कर लूंगा। इन्फेक्शन की वजह से सर का गला थोड़ा खराब है, तो अगर सर को ब्रेक चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सर ब्रेक ले सकते हैं 1 or 2 minutes। या थैंक यू मैम, मैं बीच में म्यूट करके खांसी खा लूंगा ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। ओके, थैंक यू और सो मच। पानी पी लूंगा, थैंक यू। सो अगर फिलोसॉफी की हिस्ट्री पूरी करनी है तो उनको भारतीय दर्शन शास्त्र वैदिक वांग्मय है, वैदिक फिलोसॉफी जिसमें है वहां तक आना पड़ेगा। और इन लोगों ने ऐसा किया, एक्चुअली प्लेटो से लेकर एरिस्टोटल से लेकर ये जितने लोग हैं, खास करके जो पुराने हैं उनकी अगर फिलोसॉफी पढ़े, और रिसेंटली जो विटजेंस्टाइन 20वीं सेंचुरी के हैं उन सब की पढ़े, तो उनके विचारों के ऊपर, उनकी फिलोसॉफी जो भी ब्रांच में उन्होंने काम किया है फिलोसॉफी की, उसमें वैदिक फिलोसॉफी का बहुत बड़ा प्रभाव है। लेकिन फिर भी हुआ क्या कि उन्होंने वैदिक फिलोसॉफी से कुछ आइडियाज लिए, सीखे, लेकिन फिर उसमें उन्होंने अपना भी आइडिया जोड़ दिए। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उनकी फिलोसॉफी से वैदिक गणित जैसा कुछ गणित नहीं निकल पाया। तो वो देखने की बात है। और फिर हुआ क्या, तो पाश्चात्य जगत में गणित हो या फिर दूसरी जितनी भी ज्ञान विज्ञान की शाखाएं हो, उसके लिए अगर उनको कोई फिलोसॉफिकल आइडियाज का सहारा लेना होता था, तो वो पहले भी और आज भी वैदिक फिलोसॉफी के डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं उसी के आइडियाज का स्टडी करते हैं और सहारा लेते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो भारतीयों को पता होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। और ये रीजन से भी हमें हमारी फिलोसॉफी की अलग अलग ब्रांचेस हैं, जिसमें भी इंटरेस्ट हो उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा कि हम जो भी मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, जो भी फील्ड में हम काम करते हैं उसमें हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यही विचार से वेस्टर्न वर्ल्ड में भी वैदिक साइंसेस, वैदिक फिलोसॉफी को पढ़ा जाता है आज भी। जब हम सुनते हैं कि जर्मनी में संस्कृत की यूनिवर्सिटी है, यहाँ है, वहां है, तो क्यों है? ये रीजन से है कि वो जानते हैं कि जो बीज हैं, जो विचार हैं, सीड्स हैं, विचारों के जो बीज हैं, इमेजिनेशंस के जो बीज हैं, वो भारत में हैं। अब आजकल ऐसी भी फिलोसॉफी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये सारी फिलोसॉफीज जो आपको वेस्टर्न फिलोसॉफीज बेस्ड हैं, फिलोसॉफी ऑफ लॉ, फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन, फिलोसॉफी ऑफ माइंड, पॉलिटिकल फिलोसॉफी, फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, फेमिनिज्म, साइंस, लिटरेचर, आर्ट्स, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स की तो पता भी थोड़ी बहुत होगी वेस्टर्नाइज्ड वर्ल्ड में, लेकिन दे डोंट गो हैंड इन हैंड। ये सारी फिलोसॉफीज जो हैं वो एक दूसरे से एग्री करे, जरूरी नहीं है, या फिर एक का असर दूसरे के ऊपर पड़े या एक का यूज करके दूसरे में डेवलपमेंट हो सके, ऐसा बहुत कम देखा जाता है, राइट। और उसका कारण है कि उनके जो ये फिलोसॉफी की जो डेफिनेशंस हैं, बीज हैं, उनके जो बीज हैं, द सीड्स आर नॉट नेचुरल, वो नेचुरल नहीं है, वो ओरिजिनल नहीं है। उन्होंने उसको जीएमओ बनाया, हाइब्रिड बनाया, या जो भी किया वो बनाया, फिर वो बीज एक आध दो फसल देकर खत्म हो जाते हैं। जबकि वैदिक फिलोसॉफी क्या है, तो 6 दर्शन है, 6 आस्तिक दर्शन है, वेद हैं, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, उसके ऊपर दूसरे 18 उप पुराण है, 18 औप पुराण है, और भी बहुत सारा, बहुत बड़ा समुद्र है। तो एक साइड आप पूरी दुनिया की सारी भाषाओं का प्राचीन साहित्य को रख दीजिए और दूसरी साइड आप केवल संस्कृत के प्राचीन साहित्य को रख दीजिए,
आपको आश्चर्य होगा कि विदेश के लोगों ने भी माना है, जो इसके ऊपर रिसर्च करते थे, संस्कृत के बारे में पढ़ते थे 100-200 साल पहले, कि इतना लिटरेचर तो दुनिया की सारी भाषाओं के एंशिएंट लिटरेचर को इकट्ठा करके भी इतना डॉक्यूमेंटेड लिटरेचर नहीं है। और ये भी एक रीजन है कि स्टिल दे आर interested in studying these and getting more ideas about the new possibilities of research and everything. अब इनमें क्या है, तो इसमें लॉ ऑर्डर भी है, फिजिक्स भी है, आयुर्वेद भी है, पॉलिटिक्स है, पॉलिसी मेकिंग है, वॉरफेयर है, महाभारत रामायण से लेकर शुक्र नीति, कौटिल्य मतलब चाणक्य अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स की इतनी सारी टेक्स्ट हैं, वैदिक गणित तो उसमें से एक ही है। वैदिक गणित इसी परंपरा में एक है, क्योंकि इसी परंपरा के 2 आचार्यों ने वैदिक गणित हमें दिया है, और वो लोग यही सब पढ़ते थे और उसमें से उन्होंने वैदिक गणित निकाल के दिया है। शिल्प में सारा इंजीनियरिंग आ जाता है, शिल्प से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर लिटरेचर है संस्कृत का, उसमें सारा, और नॉट नेसेसरी वो अलग से ग्रंथ हो, वो ऊपर वाले सारे ग्रंथों में भी आ सकता है। नाट्य शास्त्र में म्यूजिक, डांस और सिंगिंग सारा आ जाता है। सो इन शॉर्ट सर्वम वेदे प्रतिष्ठितम, तो वेदादि शास्त्रों में सब कुछ है ऐसा कहा जाता है, ऐसा वेदादि शास्त्र में ही बताया है। और इसीलिए भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने क्या किया, उन्होंने श्रृंगेरी के जंगलों में 6 से 7 साल तपस्या की। उन्होंने एकांतवास में अकेले रहे और वैदिक यजुर्वेद से लेकर अथर्ववेद से लेकर जो भी उन्होंने पढ़ा था, तो वैदिक शास्त्र के ऊपर चिंतन मनन और तपस्या की, और उन्हें ये वैदिक गणित के सूत्र प्राप्त हुए। और उन्होंने एक सूत्र, 16 सूत्रों के लिए 16 ग्रंथ लिखे थे, एक सूत्र के ऊपर एक ग्रंथ। दुर्भाग्य से वो सारे ग्रंथ विलुप्त हो गए, और कहा जाता है कि भारत से वो ग्रंथ विदेश में चले गए। और बाद में आप देखें तो कंप्यूटर डेवलप होने का जो एरा है, फर्स्ट कंप्यूटर वर्ल्ड को मिला, वो भी करीब 1950 के बाद का ही है, और करीब अच्छा कंप्यूटर मिलने वाला। और उसी के आसपास भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज के ये ग्रंथ यहाँ से हुए या जो भी हुआ विदेश में पहुंच गए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि वो सारे ग्रंथ उन्होंने इंग्लिश में लिखे थे। अब हुआ ये कि जो ग्रंथ थे वो इंग्लिश में लिखे थे, मतलब एक एक सूत्र को 16 सूत्र, मुख्य सूत्र जो है वैदिक गणित के जगत गुरु श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज के, वो 16 सूत्र के ऊपर, हर एक सूत्र के ऊपर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, लेकिन वो इंग्लिश में था। अब ये भी एक उनको सरलता पड़ी होगी उसमें से कंटेंट निकालने में कि ये क्या है। तो वैदिक गणित का अभ्यास, एक तरीके से वैदिक गणित का हम अभ्यास करें, उसके ऊपर आगे बढ़े, उसमें ज्यादा नया शोध संशोधन भी कर पाए, तो वो एक्चुअली हम रिक्लेम कर पाएंगे कि वैदिक गणित भारत का है, उसके लिए भी आवश्यक है। अभी मैंने यहाँ वर्ड चेंज किया कि भाई वैदिक फिलोसॉफी नहीं है लेकिन साइंस कल्चर भी है। तो बाकी सभ्यताओं में भारत भूमि से बाहर फिलोसॉफी, साइंस और कल्चर तीनों एक साथ नहीं जाते हैं, उनमें डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। और खास करके साइंस, तो पाश्चात्य जगत का जो साइंस है, विज्ञान है, जो अभी हम जिसे पाश्चात्य जगत का, वेस्टर्न वर्ल्ड का एडवांसमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसका और उनकी फिलोसफी का तो कोई मैच ही नहीं है। तो पाश्चात्य जगत में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, जब उनको फिलोसॉफिकल आइडिया बेस चाहिए होता है, आइडियाज चाहिए होता है साइंटिस्ट को, तो वो देखते हैं किसकी ओर, वैदिक फिलोसफी की ओर देखते हैं। आपको पता, आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि जो एटम बम के फादर ऑफ एटम बम कहे जाते हैं, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अमेरिका के लिए उन्होंने एटम बम बनाया। तो उन्होंने जब एटम बम ब्लास्ट हुआ तो भगवत गीता के श्लोक बोले थे, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, और उसके बाद एक्सप्लेन करने का उनका यूट्यूब का वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि उनको जो चाहिए आइडिया, साइंस टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इमेजिनेशन चाहिए, आइडियाज चाहिए, वो उनको कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऐसा विशाल, विस्तृत, अनंत ज्ञान का समुद्र चाहिए, विचारों का
संभावनाओं का समुद्र चाहिए जो वैदिक वाङ्मय है, जिसमें वैदिक फिलोसॉफी भी है, वैदिक विज्ञान भी है, वैदिक हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है। और देखने की बात है कि ये जितना भी है दे गो हैंड इन हैंड। अभी पीछे बताया, ऐसा नहीं कि कुछ एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते हैं। यहाँ पे फिलोसॉफी, साइंस और कल्चर एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। और इसको एक और स्लाइड के द्वारा मैं बताऊंगा। तो इस संस्कृत वाङ्मय के लिए बहुत कुछ कहा है विदेश के विचारकों ने, जिन्होंने इसका अभ्यास किया या इसमें से कुछ ना कुछ प्राप्त किया। ऐसे 3 को मैंने यहाँ कोट किया है। तो प्रोफेसर आर्थर एंथनी मैकडॉनल्ड कहते हैं कि जो ऋण है संस्कृत साहित्य का, वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि जिन लोगों के पास अपने अल्फाबेट्स भी सही नहीं थे, वो भी जिन्होंने संस्कृत ग्रामर और संस्कृत वाङ्मय को से उधार लेकर बनाए हैं। विदेश में जो भाषाएं हैं उसमें से बहुत सारी विदेशी भाषाओं का जो ग्रामर है वो संस्कृत ग्रामर का स्टडी करके लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट्स ने स्टडी किया संस्कृत का, और संस्कृत के ग्रामर के हिसाब से उन्होंने अपनी भाषाओं के ग्रामर को ठीक ठाक किया, सही किया है, और अभी भी उसके ऊपर काम चल रहा है। तो ये लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में, आज से 125 वर्ष पहले। तो ये हमें बहुत जानने की आवश्यकता है कि क्या है हमारे पास, क्या है और हम कहाँ पे उसको ढूंढ रहे हैं। The written format of ancient literature is enormous in India then compared to the rest of the world. वेबर कहते हैं कि पूरी दुनिया का एक साइड आप पूरा साहित्य ले लीजिए, अलग अलग भाषाओं का, प्राचीन साहित्य अलग अलग विषयों का, और एक साइड संस्कृत का वाङ्मय ले लीजिए। एंशियंट लिटरेचर इन इंडिया मतलब संस्कृत का मोस्ट ऑफ होता है। तो भी इंडिया का इतना ज्यादा बढ़ जाता है। इन 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में, टेरेसी लिखते हैं 2002 में कि 5वीं शताब्दी में भारतीय जानते थे इसी संस्कृत वाङ्मय के सहारे, इसी जो एंशियंट इंडियन मैथमेटिक्स हैं जो संस्कृत साहित्य में रिकॉर्डेड हैं, उसी के आधार पर भारतीय जानते थे कि ब्रह्मांड की जो आयु है, द एज ऑफ द यूनिवर्स इज 4.3 बिलियन ईयर्स। जबकि 19वीं शताब्दी तक इंग्लैंड के वैज्ञानिक ये मानते थे कि ब्रह्मांड की जो एज है वो 100 मिलियन ईयर्स ही है। और अभी मॉडर्न साइंस ने ये एस्टिमेट किया है कि वो 4.6 बिलियन ईयर्स है। मतलब हमारी जो 5th सेंचुरी की कैलकुलेशंस के रिकॉर्ड हैं संस्कृत वाङ्मय में, वो आज के कैलकुलेशन से मैच होते हैं। और ये भी ये लोग एस्टिमेट करते हैं, इट इज अप्रोक्सीमेट, राइट। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे पूर्वजों ने इसके ऊपर वैदिक वाङ्मय में जो कार्य किया है, और ये कैलकुलेशंस हुई तो वो हवा में तो हुई नहीं होगी, वो गणित से ही हुई होगी। तो एंशियंट इंडियन मैथमेटिक्स है, इट इज आल्सो एक्चुअली पार्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। जिस तरीके से हमने वैदिक मैथमेटिक्स की डेफिनेशन यहाँ पे ली है कि या तो सीधा संस्कृत वाङ्मय से, वैदिक वाङ्मय से लिया गया हो ऐसा गणित, या फिर उसके आधार पर रचना की गई हो ऐसा गणित, वो वैदिक गणित है। और ये जो वैदिक फिलोसॉफी, साइंस, कल्चर है, तो उसमें सर्वम वेदे प्रतिष्ठितम या जगत सर्वम व्यासोच्छिष्टम, ये सुना होगा आपने कि जगत में जो कुछ भी है वो व्यास जी का जूठन है, मतलब साहित्य के क्षेत्र में। तो उसका कारण क्या है? तो जो वैदिक लिटरेचर है उसमें क्या है, तो फिलोसॉफी है, जिसको हम दर्शन कहते हैं। जिस दर्शन मतलब जो हमें एक दृष्टि देता है कि किसको कैसे देखा जाए, और उसकी लॉजिकल दृष्टि, ऐसी नहीं कि मतलब कुछ भी वो बोले और हम मान ले। हम उसके सामने लॉजिक लड़ा सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। ये दर्शन शास्त्रों का जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो ये है कि हम उसके पास लॉजिक कर सकते हैं, उनके पास तर्क कर सकते हैं, और वो हमें जवाब देते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। दूसरी बात है साइंस, तो विज्ञान। तो इन हमारे वैदिक वाङ्मय में विज्ञान भी भरपूर मिलता है, ठीक है। कौरव जो एक में से एक पिंड था गांधारी के पेट में गर्भ के रूप में, उसमें से वेद व्यास जी ने 100 पिंड बनाए और उससे 100 कौरव हुए और एक बहन हुई। तो ये कैसा विज्ञान था? तो विज्ञान के भी आइडियाज इतने भरपूर इस वैदिक वाङ्मय में है। इवन आपने अभी हॉलीवुड की मूवीज आपने जो देखी होगी, मैं 2-4 के नाम लेता हूँ, तो उसके जो विज्ञान के आइडियाज हैं,
ऐसे सिमिलर इवेंट्स हमारे वैदिक वाङ्मय में हैं, लेकिन वो जब हम सुनते हैं कथा में या फिर कोई पुस्तक में, ग्रंथ में पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि ये तो सब बातें होंगी, काल्पनिक बातें होंगी। लेकिन अगर हम उसको हॉलीवुड के मूवी के फॉर्म में देखते हैं तो हमें लगता है कि ये साइ-फाई मूवी है। मतलब हमारी मतलब थोड़ी विचार जो है उसको हम उसके ऊपर हमें विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे कुछ मूवी के नाम मैं बताता हूँ। 2012 मूवी आई थी जिसमें पूरे विश्व में प्रलय हुआ हो ऐसा दिखाया गया था, पानी पानी हो गया पूरी दुनिया में। और उसमें आप देखेंगे तो कैसे वो लोग सारे एनिमल्स को ले जाते हैं, एनिमल्स को जोड़ों में ले जाते हैं, और वो सब जो बातें बताई हैं आपको मत्स्य अवतार वाली जो कथा है उससे मैच होती हुई मिलेगी। दूसरा जो इवेंट है, इंटरस्टेलर मूवी एक आया था, इंटरस्टेलर साइ-फाई मूवी था, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सुंदर बनाया है वो मूवी हॉलीवुड का। उसमें उन्होंने इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल और ब्लैक होल में से ब्लैक होल भी दिखाया और टाइम ट्रैवल भी दिखाया। तो वो घटनाएं ऐसी ही घटनाएं श्रीमद् भागवत में भी नोटिस की गई हैं कि भाई वहां पे भी रिकॉर्डेड हैं। और कल्चर की अगर बात, तो साइंस में भी और भी हैं, जैसे अभी दूसरी एक मूवी है, मार्वल की जितनी भी मूवीज हैं सुपर हीरोज की, उसमें एक डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी अभी आई थी, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस करके। उसमें वो एक ब्रह्मांड में से दूसरे ब्रह्मांड में, मतलब कई ब्रह्मांड हैं ऐसा दिखाते हैं। तो जब श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाकर वापस रखते हैं, उसके बाद इंद्र आते हैं, सॉरी इवेंट बदल गई, जब श्री कृष्ण के जो बछड़े होते हैं उनको ब्रह्मा चुरा ले जाते हैं, तो ब्रह्मा जी जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे ब्रह्मा आ रहे हैं श्री कृष्ण के मिलने के लिए। और तब वो बताते हैं कि भाई तुम अकेले ब्रह्मा नहीं हो इस ब्रह्मांड के, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं जिसके बहुत सारे ब्रह्मा हैं, देयर आर मल्टीवर्स। तो बहुत सारी ऐसी इवेंट्स हैं जिसके आइडियाज हमारे वैदिक वाङ्मय में हैं और जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी के साथ भी, और नए आइडियाज भी हम उससे निकाल सकते हैं। कल्चर की बात करें तो हमारा जो व्यवहार है, तो कल्चर तो शायद ऐसा कहें कि इतना प्राचीन है फिर भी जीवंत है, और अभी भी जीवंत है, खत्म नहीं हुआ है। तो ये वैदिक फिलोसॉफी वाला, साइंस वाला कल्चर जो है, वैदिक कल्चर, वही अभी सभ्यता भारत विश्व में बची है जो इतनी प्राचीन है, और फिर भी वो अपने जो व्यवहार है उसको लेकर जी रही है। उसकी जो ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं, वो सब भी कल्चर में आ जाएंगे। तो इसी को दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य होना, मतलब वो दोनों वो तीनों एक साथ चले, वो तीनों एक माला की में गूंथे हुए मोती की तरह लगे, ऐसा केवल वैदिक लिटरेचर में हो पाता है, वैदिक सभ्यता में संभव है, वैदिक फिलोसॉफी में संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी हुए, फिर उसी परंपरा में अभिनव शंकर स्वामी कृपाचार्य जी महाराज हुए। इन लोगों ने क्या किया, तो इन्होंने इसके ऊपर काम करते रहे। जो भी शास्त्र, जो भी लिटरेचर विलुप्त हो गया हो, जो भी ज्ञान की धाराएं विलुप्त हो गई हो, उसके ऊपर इन लोगों ने काम किया और उसको वापस प्रकट किया। इन्होंने ये अपना, हमारे आचार्यों ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा है भारत की भूमि में, हमारे जितने भी ऋषि हुए या आचार्य हुए, कि ये हमारा दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम विज्ञान को दर्शन के रूप में, विज्ञान के रूप में उसको हम रिप्रोड्यूस करते रहें, और उसमें अगर कुछ मिलावट हो गई हो, कुछ कचरा आ गया हो, तो उसको भी रिमूव करते रहें और फिर से समाज को प्रस्तुत करते रहें, ताकि ये धारा बहती रहे। जैसे कि एक नदी होती है तो उसको शुद्ध रखने के लिए उसको कई बार साफ भी करते हैं, उसकी धारा को शुद्ध रखने के लिए। और उसी परंपरा में हमें भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने वैदिक गणित दिया, इसी दर्शन, विज्ञान और व्यवहार को सामंजस्य, इन तीनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए। और अभी जो शंकराचार्य जी हैं, निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने हमें वैदिक गणित के ऊपर दर्शन शास्त्र के 300 से अधिक सूत्र दिए। तो हम धीरे करके वैदिक गणित फिलोसॉफी के ऊपर जाएंगे। तो ये फिलोसॉफी की ही बात है कि कौन व्यक्ति महान होता है। तो एक महान व्यक्ति के जो गुण हैं, लक्षण हैं, उसको दर्शाने के लिए यहाँ पे गणित का उपयोग किया गया है। ये एक प्राचीन श्लोक है जिसका अर्थ ये होता है कि एनी नंबर डिविजिबल बाय 9 हैज द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इक्वल टू 9।
यहाँ पे श्लोक में लाकृति मतलब 9। तो महान जो लोग होते हैं, महापुरुष लोग होते हैं, सब बहुत अच्छे लोग होते हैं, उनका क्या होता है, तो उनको उनमें से कुछ भी आप उनको समाज के द्वारा कुछ भी गलत मिले या उनके पास कुछ रहे ना रहे, फिर भी वो अपनी प्रकृति छोड़ते नहीं है। जैसे 9 अंक है, वो 9 का 9 अंक बना ही रहता है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि हमारे पूर्वजों ने इस वैदिक वांग्मय में अलग अलग बातों में गणित को जोड़ के रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे महापुरुषों की, महान लोगों की, महान व्यक्तित्व की, जो बहुत अच्छी पर्सनालिटी होते हैं, उनका सद्गुण क्या होते हैं, दे डोंट हेजिटेट, दे डोंट डेविएट फ्रॉम देयर वर्च्यूज। वो अपने सद्गुणों से डेविएट नहीं होते हैं। ऐसा आपको शास्त्रों में बहुत सारी जगह मिलेगा कि जहाँ पे कंपैरिजन किया गया हो, एक तीर से दो निशान, मतलब बात एक कह रहे हैं लेकिन उसमें गणित भी आ गया और उसमें महापुरुषों की, अच्छे लोगों की एक लक्षण भी आ गए। सो प्रश्न कोई पूछे कि भाई वैदिक मैथमेटिक्स की फिलोसफी क्या है, तो ऑफकोर्स वो वैदिक फिलोसफी है, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स उसी से प्रकट हुआ है, उसी से उसको निकाला गया है। अब जाते हैं हम द मैथमेटिक्स ऑफ वैदिक फिलोसफी के ऊपर। तो बीच में फिलोसफी ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर भी जाएंगे। तो यहां से आगे आप रेड फॉन्ट्स में जितने भी सूत्र देखेंगे वो वर्तमान शंकराचार्य जी, श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने वैदिक गणित के विविध ग्रंथों में दिए हुए हैं। और वो भी वैदिक गणित के ही सूत्र हैं, ये भी वैदिक गणित के ही सूत्र हैं, अदर देन भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज के 16 सूत्र, 13 उपसूत्र आदि और 3 कूट सूत्रों के सिवा के ये सूत्र हैं। इससे भी गणित की बात, गणित की फिलोसॉफी आप देख सकेंगे। तो ये गणेश पूर्व तापिनी उपनिषद है, उसका ये सूत्र है, मूले शून्यम विजानीयात शून्यम वै परम ब्रह्म। तो शून्य जो है वो परम ब्रह्म है, या परम ब्रह्म है वो शून्य है, दोनों तरीके से अगर गणित का लेते हैं तो शून्य परम ब्रह्म है। तो परम ब्रह्म है का कहने का तात्पर्य ब्रह्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो सर्वव्यापक है, वो सर्वत्र है, वो सब में है, वो सर्वस्थान में है, सर्व समय में है, राइट, और तीनों कालों में है। तो यहाँ पे जीरो को ब्रह्म कहा गया है। गणित के अंदर देखने जाए तो जीरो का जो बिहेवियर है वो ब्रह्म का है, और शास्त्रों में भी शून्य और ब्रह्म को एक साथ रखा गया है। शून्य जो है उसको आप गुण ले लें या फिर नंबर ले लें, वो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो देखने की बात है कि सूत्र तो है उपनिषद का, वो दर्शन के लिए है, स्पिरिचुअलिटी के लिए है, एक दृष्टिकोण के लिए है, लेकिन वो गणित में सीधे सीधा बैठ जाता है। तो मूल में क्या है, शून्य है। तो शून्य जो है वो ब्रह्म है, या उसको शिव कहें, और एक जो है उसको माया कहें या शक्ति कहें। तो शिव और शक्ति से पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। तो शून्य और एक मिलके पूरी सृष्टि कैसे करते हैं वो बताया गया है। आगे तैत्तिरीय उपनिषद में बताते हैं कि सो कामयत, उसने कामना की, उसने इच्छा की, ही डिजायर्ड टू बिकम मैनी। किसने, तो बोले ब्रह्म ने, ठीक है, या ईश्वर ने। तो वो कौन, तो शून्य ने कामना की एक से अनेक बनने की। तो उसने क्या किया, तो वो एक से सम्मिलित हो गया माया से। माया क्या है, वो ब्रह्म की शक्ति है। अगर आप थोड़ा बहुत ये स्पिरिचुअलिटी हो या धर्म या ऐसा कुछ देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो ये सब शब्द आपके लिए नए नहीं, दे आर नॉट न्यू फॉर यू, राइट। तो फिर ब्रह्म और माया के एकाकार होने से क्या हुआ, तो मायोपाधिक ब्रह्म हुआ, और वो एक हुआ, और फिर उसने एक एक करके, एक से एक +1 करके, वो 2 3 4 5 6 ऐसा करके उसने ये काम आगे बढ़ाया। अब ये आप देखेंगे कि 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3। तो ये वैदिक गणित के भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज के एक सूत्र जैसा है, एकाधिकेन पूर्वेण, पहले से एक ज्यादा। तो ये इसी सूत्र, ये जो वैदिक फिलोसॉफी थी, ऐसा माना जाता है कि इसी वैदिक आध्यात्मिकता के अंदर से भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने ये प्रथम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण उनको प्राप्त हुआ था, उन्होंने उसके दर्शन किए थे।
बाद में जीरो को शव कहें और कहीं पर शक्ति कहें, तो तंत्र शास्त्रों में शव और शक्ति मिलकर ही शिव बनते हैं, ऐसा भी, तो 0 + 1 = 1 ऐसा भी दिया गया है। सो इन शॉर्ट, एकाधिकेन पूर्वेण, ये जो सूत्र है, ये सूत्र की शुरुआत और उसकी जो फिलोसॉफी है, ठीक है, उसकी जो वैदिक फिलोसॉफी है वो इस सूत्रों में है और उपनिषदों में है। और इस कारण से भारती कृष्ण त्रिजी महाराज ने जो गणित के सूत्र दिए और मेथड्स दिए हैं, उसके मूल में वैदिक वांग्मय है, इसलिए उन्होंने उसको वैदिक फिलोसॉफी, वैदिक मैथमेटिक्स कहा है। सो एकाधिकेन पूर्वेण, पहले से एक ज्यादा, इसी तरीके से कुछ नहीं था, उसमें से सृष्टि हुई प्रकृति, ठीक है। अभी इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो शून्य को अव्यक्त या ब्रह्म कहा गया है। फिर उसमें से सबसे पहले स्पेस एलिमेंट होता है। ये भी वैदिक फिलोसॉफी ही है, ये वैदिक वाङ्मय का ही है। सृष्टि क्रम है, कैसे सृष्टि बनी, कैसे सब कुछ प्रकट हुआ। तो शून्य से, शून्य में एक ऐड करेंगे तो एक आएगा। तो वो एक क्या है, तो वो एक क्वालिटी वाला, एक तन्मात्रा वाला, जो जिसमें एक क्वालिटी है। कौन सी क्वालिटी, तो बोले कि शब्द, आवाज की क्वालिटी, ध्वनि की क्वालिटी, वो क्या है, आकाश। तो आकाश बना, तो अव्यक्त से आकाश उत्पन्न हुआ, उसमें और एक तत्व जुड़ा, और क्या हुआ, तो कौन सा गुण जुड़ा, तो शब्द था जो आकाश का गुण, उसमें स्पर्श गुण जुड़ा, और वायु हुआ, एयर। फिर वायु में एक और गुण जुड़ा, वायु के गुण में, वायु के 2 ही गुण हैं, शब्द और स्पर्श, उसमें एक और गुण जुड़ा, शब्द स्पर्श और रूप जुड़ गया, उससे वो बन गया अग्नि। तो अग्नि जो है वो वायु से प्रकट हुआ, अग्नि से फिर जल प्रकट हुआ, जिसमें एक और गुण आ गया, रस। तो एकाधिकेन पूर्वेण, पूर्व से एक ज्यादा, पूर्व से एक ज्यादा, ऐसा करते करते जो 5 एलिमेंट्स हैं, जिसे पंच महाभूत कहा गया है वैदिक वाङ्मय में, वैदिक फिलोसॉफी में, वो उत्पन्न हुए, और उसी से फिर इन्हीं से आगे सारी सृष्टि हुई। सॉरी, इन्हीं से आगे सारी सृष्टि हुई। तो तो सृष्टि बनना मतलब कुछ नहीं होना। बिग बैंग थियरी जो है, पहले कुछ नहीं था। बिग बैंग थियरी भी ऐसा ही प्रपोज कर दिए, पहले कुछ नहीं था, फिर अचानक से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग हुआ, तो जो कुछ नहीं था वो शून्य था, वो लोग ये कहते हैं, ठीक है। तो बिग बैंग थियरी भी एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र को ही फॉलो करती है, और इसी सृष्टि क्रम को, सृष्टि क्रम मतलब जिससे सृष्टि, जिस क्रम में सृष्टि बनी, तो इस क्रम में सृष्टि बनी, ऐसा वैदिक वाङ्मय कहते हैं, और ऐसा वैदिक गणित कहता है, ऐसा एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र कहता है। अब जब प्रलय होता है तो क्या होता है, तो हमारा वैदिक वाङ्मय ये कहता है, वैदिक दर्शन शास्त्र, कि प्रलय होता है तो उल्टा होता है, जो पृथ्वी होती है वो पानी हो जाती है, पानी जो होता है वो आग बन जाता है। मतलब जो 5 गुण थे उसमें से 4 गुण, 3 गुण, 2 गुण, 1 गुण, ऐसा करते करते डिसॉल्व होते जाते हैं या डिसअपियर होते जाते हैं, एक दूसरे में खत्म हो जाते हैं। तो पृथ्वी से जल बन जाता है, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश, और आकाश से फिर अव्यक्त, जिसको महाप्रलय कहते हैं। तो वो कौन सा सूत्र है, एक न्यूनेन पूर्वेण, तो पहले से एक कम। तो इसी ये सूत्र, प्रलय की जो पूरी वैदिक फिलोसॉफी है, उसके ऊपर से भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने एक न्यूनेन पूर्वेण सूत्र प्रकट किया। बाद में उन्होंने उसको, उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस, इनकी बहुत सारी हैं, भौतिक एप्लीकेशंस, फिजिकल एप्लीकेशंस, फिजिकल वर्ल्ड के लिए एप्लीकेशंस फिर बहुत सारी बनती है, लेकिन मूल तो जो विचार है, वो आइडिया है, वो इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि किसी व्यक्ति में कितना नॉलेज है, ज्ञान है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका इमेजिनेशन क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। आइडियाज आर मोर इंपॉर्टेंट देन इमेजिनेशंस। तो एंड नॉलेज। तो कहने का तात्पर्य है कि एकाधिकेन पूर्वेण सृष्टि क्रम है, एक न्यूनेन पूर्वेण संहार क्रम है या प्रलय का क्रम है। अब इससे और भी विज्ञान की बात अगर देखनी हो, इसको और विज्ञान की ओर ले जाना हो, मैथमेटिक्स के अलावा, ये 2 गणित के सूत्रों के अलावा, तो भी हम सोच सकते हैं कि भाई सृष्टि का एवोल्यूशन और डिस्ट्रक्शन अगर इस क्रम में हुआ तो उसके ऊपर रिसर्च हो सकता है, उसके ऊपर रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन हो सकते हैं। दूसरी बात, जो अभी एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, एटॉमिक वॉरफेयर के लिए लोग अलग अलग कंट्रीज ने बना के रखे हुए हैं, उसके दूसरे भी यूज कर रहे हैं, अच्छे यूज भी पॉसिबल हैं।
तो एटम बम में क्या होता है, तो हाइड्रोजन से हीलियम बनता है या फिर हीलियम से हाइड्रोजन बनता है। तो ये जो दोनों टाइप के जो एटॉमिक बम है, फ्यूजन और फिशन करके, एटॉमिक फ्यूजन और एटॉमिक फिशन, तो उससे जो एनर्जी उत्पन्न होती है, क्या पृथ्वी को जल में परिवर्तित करने से उससे ज्यादा एनर्जी उत्पन्न नहीं होगी, या कितनी होगी? उसमें भी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी कुछ चेंज तो हो ही रहा है एटम लेवल पे। तो ये जो है, अगर ये 5 एलिमेंट्स हो, उसमें से पृथ्वी में से मिट्टी को इतना प्रेस किया जाए या फिर इतना उसके ऊपर प्रोसेस किया जाए गर्मी से या प्रेशर से, कि उसी से पानी बन जाए, तो क्या इस टाइप का कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम डिफाइन किया जा सकता है, या ऐसी कोई डिवाइस या ऐसा कुछ बन सकता है? तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी और उससे क्या होगा डिस्ट्रक्शन? तो उससे भी वेपन बन सकते हैं, ऐसा इस आइडिया से लगता है कि जो एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, क्योंकि अगर सृष्टि का क्रम इस